Assalamualaikum my dear students. Today we are going to learn about organization of data. Dear student, organization of data is an important feature of an operating system, and the structure of the data storage include the drives, folders and files. Today we will discuss about drives and folder. Next class we will discuss about the files. Okay, let's come to learn about the drives. Dear student, drive is a medium that store and read the data, and usually the computer drives are divided into three partitions: disk C, disk D and disk E. You can see in at here local disk of the computer hard drive, and next image of the disk C, D and E. These are the computer hard drives. Dear students, you can rename your drives, your disk according to your needs, and if you want to rename your drives, you should follow three steps. In first step, you will place your mouse pointer on that drive that's name you want to rename. So firstly you will place your mouse pointer at that disk and then right click of your mouse. When you will right click of your mouse, then first step is complete, and in second step you can see that second last option will be rename. You will click rename from that menu, that is you and then your second step is also completed. In third step, now you will type the new name of your disk and press enter. Now your डिस्क इज़ रीनेम. अब आपकी डिस्क का नाम चेंज हो चुका है, जो आपने अपनी विश के अकॉर्डिंग या अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसका नेम सेलेक्ट किया या टाइप किया, वही उसका नाम हो चुका है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फोल्डर. And dear student, folder is a storage space where programs, files and other folder can be stored as a group. Folder organize the computer data into groups. It is an easy way to put all the related items into a group. Dear students, you can create new folder and you can rename your folder also. If you want to create the new folder, then you will follow some steps. In step 1, if you are going to create the new folder, then in step 1 you will place your mouse pointer at that location where you want to create a folder. If you want to create the folder on the desktop screen, then place mouse pointer on the desktop screen, and if you want to create a folder at any disk, then open that disk and place your mouse pointer at there and right click of your mouse. When you will right click of your mouse, then a menu will be open and where you search the option of new. When you find the option of new, then you will select that option of new. After clicking on the option of new, a new one menu will be open where the first one option is folder. Now you will click on the option of folder and type the name of the new folder and press enter. Now your folder is created, and same as we rename the disk C, D or E or something, you can rename your folder also. जैसे आपने डिस्क सी, डी, ई में से किसी का नेम रीनेम करना देखा था, एज इट ही आप अपने फोल्डर का नाम भी रीनेम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. इसको एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं. हमने देखा कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, हमारे पीसी में, हमारे कंप्यूटर में डाटा को ऑर्गेनाइज करना, स्टोर करना, मैनेज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है. हम डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को कंप्यूटर में 3 जगह पर सेव कर सकते हैं: डिस्क में, फोल्डर में और फाइल्स में. आज हमने अपने ड्राइव्स को, डिस्क को डिस्कस किया, फोल्डर्स को किया, और नेक्स्ट हम फाइल्स के बारे में देखेंगे. डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली ऑलमोस्ट कॉमनली हमारे कंप्यूटर की जो ड्राइव्स होती हैं वो 3 पार्टीशन में डिवाइड होती हैं: डिस्क सी, डिस्क डी एंड डिस्क ई में. आप अपने डाटा को डिस्क सी, डी, ई में कहीं पर भी स्टोर कर सकते हैं, और आप अपनी डिस्क को अपनी नीड के अकॉर्डिंग नेम भी चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, आप घर में 3 बहन भाई हैं और हर बच्चे ने अपना अपना डाटा स्टोर करना है, तो आप अपनी इन तीनों ड्राइव्स को आपस में डिवाइड करके अपने अपने नाम से रीनेम कर सकते हैं.
रीनेम करने के लिए आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आप अपने माउस पॉइंटर को उस डिस्क पर लेकर जाएंगे जिसका नेम आप चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप सी का नेम चेंज करना चाहते हैं तो सी पे माउस पॉइंटर को ले जाकर आप राइट क्लिक करेंगे। आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। उस मेन्यू में से आप देखेंगे सेकंड लास्ट में आपके पास ऑप्शन है रीनेम का। आप रीनेम को क्लिक करेंगे। आपके पास रीनेम को क्लिक करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आ जाएगा कि आपने जो न्यू नेम चेंज करना है वो टाइप करें। आप न्यू नेम टाइप करेंगे और एंटर की की प्रेस कर देंगे और आपका फ़ोल्डर रीनेम हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अब चलते हैं नेक्स्ट फ़ोल्डर की तरफ। मैंने आपको बताया कि फ़ोल्डर भी हमारे पास स्टोरेज स्पेस है जहाँ पर आप एक से ज़्यादा मज़ीद प्रोग्राम्स को, मज़ीद फ़ाइल्स को, मज़ीद फ़ोल्डर को एक ही फ़ोल्डर में सेव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लास 1 2 3 4 5 को IT पढ़ा रही हूँ, टीच कर रही हूँ। मुझे क्लास 1 2 3 4 5 का डाटा सेव रखना है तो मैं सिंपली एक फ़ोल्डर बनाऊँगी अपने नाम से, IT माई फ़ोल्डर के नाम से या IT फ़ोल्डर के नाम से, या जस्ट IT उसको मेंशन करूँगी। उस फ़ोल्डर का नाम IT लिख लूँगी और फिर उस IT फ़ोल्डर के अंदर मज़ीद 1 IT 2 IT 3 IT 4 IT 5 IT के नाम से फ़ोल्डर बना लूँगी। और अब जब मुझे IT से रिलेटेड कोई भी टास्क रीड करना होगा या चेंज करना होगा या चेक करना होगा तो सिंपली मुझे IT फ़ोल्डर को सर्च करना होगा और IT फ़ोल्डर के अंदर ही मुझे क्लास 1 to 5 ऑल क्लासेस के IT का डाटा जो है वो इजीली वहाँ अवेलेबल होगा और मैं उसको चेंज कर सकूँगी या रीड कर सकूँगी या जो भी मैंने उसमें जिस ऑप्शन को भी अवेल करना होगा। अंडरस्टैंड। हम फ़ोल्डर में एक फ़ोल्डर के अंदर सब फ़ोल्डर, मज़ीद फ़ोल्डर्स, मज़ीद फ़ाइल्स, मज़ीद प्रोग्राम सेव कर सकते हैं और ये सेम आइटम्स को हमारे पास रिलेटेड आइटम्स को ग्रुप की फॉर्म में सेव करने का बहुत अच्छा तरीका है। अब बच्चों आप न्यू फ़ोल्डर अपनी ज़रूरत के मुताबिक क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको रीनेम भी कर सकते हैं। अगर आप न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टेप्स फॉलो करना होंगे, 3 स्टेप। सबसे पहले तो आप उस जगह को, लोकेशन को फिक्स करें जहाँ पे आप फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर डेस्कटॉप पर, और अगर आप डिस्क में कहीं पर किसी ड्राइव में या किसी मज़ीद फ़ोल्डर में कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो पहले उस लोकेशन पे जाएं। वहाँ जाके अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे। व्हेन यू विल राइट क्लिक देन अ मेन्यू विल बी ओपन और उस मेन्यू में से आप न्यू का ऑप्शन ढूंढें। न्यू के ऑप्शन को क्लिक करें। जैसे ही आप न्यू के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे आपके पास एक और मेन्यू ओपन होगा और उसमें टॉप 1 फर्स्ट 1 आपके पास ऑप्शन फ़ोल्डर होगा। उस ऑप्शन को आप क्लिक करें। जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने पॉपअप मेन्यू में से फ़ोल्डर को सिलेक्ट करेंगे तो अब वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं अपने उस न्यू फ़ोल्डर का नेम, जो भी आप उसका नेम सर्च करना चाहते हैं। जैसे अगर आप कोई होमवर्क का फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं, क्लास वर्क का बनाना चाहते हैं, अपनी कोई असेसमेंट का फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं, अपनी गेम्स का फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं, जो नाम भी आप उसका सिलेक्ट करना चाहते हैं आप उसका वो नाम टाइप करेंगे और आप एंटर की प्रेस कर देंगे। आपका फ़ोल्डर बन गया। सेम एज़ जैसे हमने डिस्क का नेम चेंज किया था, रीनेम किया था, ऐसे ही हम फ़ोल्डर का नेम भी चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। और इसके लिए भी आपको वही स्टेप फॉलो करना होंगे कि आप फ़ोल्डर पर अपने माउस पॉइंटर को प्लेस करें, राइट क्लिक करें माउस का, उसमें से जो मेन्यू आपके सामने ओपन होगा उसमें से रीनेम के ऑप्शन को क्लिक करें और फिर रीनेम करने के बाद आप डिस्क का न्यू नेम सेट करें जो आप सेट करना चाहते हैं और उसके बाद एंटर की प्रेस कर दें। आपके सामने वो न्यू नेम शो होने लगेगा। आपका फ़ोल्डर भी रीनेम हो चुका है। होप सो आपको उसकी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपके घर में कंप्यूटर, लैपटॉप हैं तो आप उसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। डिस्क को रीनेम करना, फ़ोल्डर क्रिएट करना, फ़ोल्डर को रीनेम करना, इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और कोई भी क्यूरी हो तो आस्क मी फ्रीली। और नेक्स्ट हम फाइल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए